Why do you hate India? Mostly the Indians. I have my local guide who will give me a tour. Are you ready to give me a tour? No. But still I will get a tour. It's so hot. We are going to get... Agua de pipa. What is agua de pipa? Coconut water. Coconut water from Fresh Market there. This restaurant is many years old. I do not like their food, but many people come here because their grandpas or their parents used to come here. This area is called Nunciatura. There are a couple of Hilton restaurants on that side. One of those are the tallest buildings of Costa Rica. I will show you in a while. Okay, I'm rolling. Is this someone's house? No. It's an office of the church, of the Catholic Church. See that yellow with white flag? That's the That one? Catholic Church flag. Churches and temples are super rich organization. This is a quick grab and go kind of store. Yeah, I also want a small one. So we are going from the part of the city, San Jose, that is closer to the west, and then we will go to the center, and then we will go to a little bit of east, and you will see the difference how the buildings or the kind of stores change around. In front is National Football Stadium. They also do a lot of concerts here these days. There are matches of women FIFA going on. It's kind of a business center in San Jose, Costa Rica. And then today we are taking a bus. We will go to the bus stop there. They are building one more office structure here beside the tallest building. This is one of the banks. I think Scotia Bank is Canadian. It's Canadian, right? Scotia Bank is Canadian, and they bought Citibank's operations in San Jose or Costa Rica. This is the tallest building of Costa Rica. How much you think the bus will be? I've never taken this one. But a guess I'm estimating 300 plus a bit. per person? Yeah, Between 300 and 500? for sure. Yeah, right. I think it will be more close to maybe 300 than 500. Let's see who wins. यहाँ पर जो बसेस होती हैं उन पे पहले से ही इधर लिखा होता है कितना है. ये 395 कॉलोनीज की है. ऑलमोस्ट $1. नो, ऑलमोस्ट $1. $1 कोई 600 कॉलोनीज का होता है. मैं माता का बैग लेके चला हुआ हूँ आज. मैं इसको बोल रहा था कि मैं इसको सामान यूज करने में हेल्प करता हूँ. तो घर पे बहुत सारे बैग पड़े हुए. Yeah, then people will stare at me. Or they will think that my fashion sense is better. यहाँ मार्ता virtually चश्मे ट्राई कर रही है. Which one do you like most? This or this? I think I like this one. This one is my top choice. After that, I think it could be this. यहाँ अभी हम सेंटर में आ गए हैं. कोई लॉटरी बेच रहा है, कोई नींबू बेच रहा है, कोई जुराबे बेच रहा है. सब कुछ मिलेगा. सब क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा. हम लोग जा रहे हैं उधर सेंट्रल मार्केट में, जहाँ बहुत सारी डिफरेंट दुकानें होती हैं. ये देखो, जैसे दिल्ली में नहीं होता रोड पे सामान बेच रही होती है सारी जनता. विक्टोरिया सीक्रेट
Not Victoria's Secret, Leona's Secret. वॉकिंग स्ट्रीट है यहाँ पे। आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर पे सिर्फ दुकानें ही दुकानें हैं हर जगह। कोई गिफ्ट की शॉप है, कोई फोन की शॉप है, कपड़ों की दुकानें हैं और कैफेटेरियाज, रेस्टोरेंट्स। अभी हम लोग मर्कादो सेंट्रल की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी देर में पहुंच के बताते हैं कैसी दिखती है मर्कादो सेंट्रल। What do you think about the fantastic fragrance that we are getting here? तो ये जैसे सारी मार्केट है इधर, बट जो मर्कादो सेंट्रल है वो ये है। 1880 से एग्जिस्ट करती है। इसके अंदर बहुत सारी दुकानें हैं। तो अभी हम लोग जाके देखते हैं। What do you like most about Mercado Central, or you don't like it? I do. What do you like about it? I like the witchcraft stores. Witchcraft stores. So we are going to see those as well then. यहाँ से हम लोग एंटर करें। ये देखो यहाँ ज्वेलरी की दुकान है और ये सामने ही एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स को सोडा बोलते हैं। तो देखो सोडा लिखा हुआ है इधर। और यहाँ पे बैग टांगे हुए हैं बहुत सारे। जूतों की दुकानें, अलग अलग टाइप की दुकानें हैं। बामुस अवेर दुकानें। और यहाँ पे लोग सब खाना खा रहे हैं। टॉफियाँ होती हैं जैसे वो है, अलग अलग रंग है। टेस्ट मेरे ख्याल से सेम ही होता है इनका। और ये देखो ये लोकल ड्रेसेस हैं यहाँ पे लड़कियों की। अभी तो मैंने किसी को देखा नहीं है पहनते हुए, सिर्फ जब सितंबर में इनका वो होता है इंडिपेंडेंस डे तभी पहनते हुए देखा हुआ है मैंने लोगों को। यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स हैं, यहाँ पे आपको फ्रेश फिश मिल जाती है और सुपरमार्केट से प्राइस कंपेयर करोगे तो बहुत ही सस्ती मिलती है इधर, और फ्रेश भी होती है हमेशा। ये देखो इधर श्रिम्प्स पड़े हुए हैं और यहाँ मछलियाँ अलग अलग तरीके की, और ये रेट लिखे हुए हैं ऊपर। ये देखो जो हम लोग उस दिन वो खा रहे थे कलडोसा जो होता है, वो सांता क्लॉज को भी पसंद है। सांता क्लॉज भी वही खाता है। बहुत ही सारी खाने की दुकानें हैं, सबको एक बैठ के खाना खा रहा है। और ये जूस और फ्रूट्स की दुकान है इधर। ये दुकान जिसके लिए कोस्टा रिका फेमस है कॉफ़ी के लिए, ये खुद रोस्ट कर रहे हैं कॉफ़ी इधर। वहाँ पे एक बहुत बड़ी रोस्टिंग मशीन है जहाँ कॉफ़ी रोस्ट कर रहे हैं। Hola, ¿cómo estás? Bien, esto es así, vea. Ya se está tomando la copa. Así se echa el cru. El café cru se echa ahí. तो ये वाले जो बीज हैं ये कच्ची कॉफ़ी है, ये ऊपर डालते हैं ये लोग। Ahora esta palanca para que caiga aquí. Veo que se mueve. और वहाँ रोस्ट हो रहा है, देखो वहाँ अंदर मूव हो रही है कॉफ़ी, मतलब रोस्ट Y हो ya रही aquí sale tostado. है। और रोस्ट होने के बाद ये फ्रेश कॉफ़ी टोस्ट होके निकलती है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इधर कॉफ़ी की। मुझे ग्रासियस। Para sentir. यहाँ अलग अलग टाइप की कॉफ़ीज़ के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। ये ऑर्गेनिक कॉफ़ी है जो हेरेडिया प्रोविंस में से आती है। ये तराजू रीजन से आती है जो कि साउथ ऑफ कोस्टा रिका में है। और ये क्लासिक एक और मिक्स है इधर का। डू यू वांट अ कॉफ़ी? हम लोग ने कॉफ़ी पीना डिसाइड किया है। आई थिंक मैं हमेशा की तरह कुर्तादो पीऊँगा। मार्ता देख रही है क्या पिएगी। ये कॉफ़ी का मेन्यू है और ये देखो चाय भी है इनके पास। 2850 कोलोनेस। आई थिंक ये कोई $3.5 के आसपास चाय है इनके पास। बट हम लोग कॉफ़ी पियेंगे क्योंकि इनकी जो चाय होगी वो पाउडर से बनी होगी। 6 टाइप की कॉफ़ी ये लोग रोस्ट करते हैं। इस कार्ड में डिटेल्स बताई हुई है इसकी, इंग्लिश में और स्पेनिश में। कॉफ़ी स्टोर का नाम है कैफे सेंट्रल। 100% कोस्टा रिकन कॉफ़ी है ये। जैसे मैं आपको बता रहा था कोस्टा रिका कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है। यहाँ ये फ्रेश कॉफ़ी ग्राइंड कर रही है। यहाँ ऊपर कॉफ़ी बीन्स पड़ी हुई है।
मेरी कुर्तादो बन गई है। ये आई डोंट नो कि जेम्स वेबर का एक और फोटो निकली है उससे कि इसने कुछ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाई है। Martha says it's an art, so yeah, Y it's ese es el de Calatrava. देखो, मैं अपनी कॉफ़ी को लेकर बहुत पिकी हूँ और ये बहुत अच्छी कॉफ़ी है। So this is what Martha got. A ver, ¿ves? Y este, vale, aquí Figs. $7. इसके ऊपर फिग है और कुछ whipped cream है, अंदर कॉफ़ी, चॉकलेट। 100 gramos. I don't even have an idea what it has. हर जगह लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। यहाँ बाहर खाना खाने का कल्चर बहुत ज़्यादा है, तो आपको सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगे खाना हर जगह मिल जाता है। देखो कितने ही लोग खाना खा रहे हैं बैठ के हर जगह। बड़ी फार्म है ना? ये देखो मेहंदी भी है इधर, हैना कलर, मेहंदी का रंग। इसको मैक्रोबियोटिका बोलते हैं। यहाँ पे जैसे हिमालय की दुकान नहीं होती, नेचुरल मेडिसिन मिलती है, यहाँ पे भी नेचुरल मेडिसिन मिलती है। इस दुकान में छोटी छोटी चीज़ें, कुछ तरीकन चीज़ें पड़ी हुई हैं, कपड़ों से लेके हैमक से लेके टॉयज, शॉट ग्लासेस और ये वाली चीज़ें। इस दुकान में अलग अलग दाल और राजमा टाइप के मिलते हैं। ये देखो अपनी वो लाल दाल, और ये एक टाइप की मक्की होती है, पर्पल कलर की मक्की। ये एक और टाइप की बीन्स, कुछ और लोकल दालें और सामान पड़ा हुआ है इधर। विच क्राफ्ट की दुकान है, मतलब यहाँ पे जो भी अपने नेचुरल हर्ब्स और मेडिसिन्स के प्लांट्स होते हैं वो मिलते हैं इधर। और इन बंदों को काफ़ी नॉलेज भी होती है, ये बताते भी हैं कि ये वाला प्लांट कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये इन्होंने लिखा हुआ है कि ये अपनी मेडिसिन से, अमोर मतलब लव होता है, आप फाइंड कर सकते हो इनकी मेडिसिन से। दिनेरो मतलब पैसे होते हैं, तो इनकी मेडिसिन कंज्यूम करोगे तो ये सब आपको मिलेगा। सुerte लक होता है, नेगोशियो मतलब बिजनेस। अलग अलग तरीके की चीज़ें ये लोग करते हैं और ये प्रॉपर सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं ये हर्ब्स यूज़ करके। और अगर आपको उड़ना है तो यहाँ ये हैरी पॉटर के झाड़ू भी पड़े हुए हैं। ये देखो, ये सारी दुकानों के बाद फिर यहाँ एक फ्लावर सेक्शन आता है, बहुत ही सुंदर। इनके पास अलग अलग ये मार्ता को चाहिए एक छोटा सा जानवर के फ्लिप फ्लॉप्स जो होते हैं घर पे पहनने वाले। मेरे पास एग्जैक्टली ये है। फूलों का सेक्शन, बहुत सारे प्यारे प्यारे फूल पड़े हुए हैं इनके पास अलग अलग तरीके के। मेरे को बहुत अच्छा लगता है घर पे फूल रखना, बट हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे पास में बहुत महंगे मिलते हैं। यहाँ पे हम प्रीटी श्योर कुछ थोड़े अफोर्डेबल प्राइसेस हैं इनके। बहुत फेमस सोडा है, सोडा में आपको बता रहा था दुकान होती है। और यहाँ अपने को हमारा दोस्त मिला है, most horrible person. If you see this guy, show your face. If you see this guy, run away from him. Luis, explain to people what you are eating. Tamal, typical Costa Rican Christmas food. It's made with corn and it's got everything inside. Really, really good. But why are you eating a Christmas food in August? Because I love it. I can't find it very often. It's only here, only Yeah. in this place. सोडा ताला। बहुत सालों में पहली बारी मैं यहाँ पे एक गेहूं का सूखा हुआ प्लांट देख रहा हूँ, बट यहाँ लड़की ने मेरे को बताया नहीं अपने सीक्रेट के कहाँ से लेके आई है ये। मैं पूछ रहा था इसको। ये देखो, ये जो ड्राई कोकोनट होता है उससे एक ब्रश बना हुआ है जो वुडन फ्लोर को शाइन करने में यूज होता है। लुइस, Super bueno. Las abuelas, the grandmothers used to do that. grandmothers used to use these kind of things. यहाँ ये लड़की एक बॉटल में हर्ब्स बेचती है और लुइस इसको बोल रहा है कि छोटी छोटी क्वांटिटी में मेरे को बेच दे, जिससे कि ये कॉकटेल ट्राई करेगा फॉर मार्केट इन्वेस्टिगेशन। Research and development. तो ये हमने एंड में बॉटल ले ली है पूरी, इसमें जिन इन्फ्यूज करके जिन टॉनिक्स बनेंगे जो कि टूटे हुए दिल जोड़ती है।
Why go to India when you can get ये it? देखो इंडियन करी कुछ भी बेच रहे हैं ये झूठ झूठ। यहाँ पे एक क्लैंडस्टीन बार हुआ करता था जो कि पेंडेमिक में इन्होंने बंद कर दिया है। तो लुइस अभी इस बंदे से पूछ रहा है कि बंद क्यों कर दिया और कोई लोकल बार नहीं है जो अपना पुराने जमाने से खुला हुआ है। तो अभी हम लोग बार ढूंढ रहे हैं एक छोटा सा। यहाँ देखो अलग अलग टाइप की मिर्चें पड़ी हुई है। जो सबसे स्पाइसी मिर्च है वो ये वाली है रोकोतो, बहुत ज़्यादा स्पाइसी मिर्च है ये। उसके बाद ये अलग अलग, ये देखो टमाटर के जैसी एक मिर्च है और कुछ फ्रूट्स पड़े हैं। हम तीनों ने कभी ये वाला फ्रूट ट्राई नहीं किया तो ये वाला फ्रूट खरीद के ट्राई करते हैं कैसा है। इसका नाम मैंगोस्तान है, तरबूजा होता है वैसा सा लग रहा है देखने में। चीकू और कद्दू जैसा टेस्ट आ रहा है और अंदर एक बीज भी है बहुत बड़ा। एक फेमस दुकान है जो ये गुजिया टाइप के, इनको एम्पनादा बोलते हैं और इसके अंदर अलग अलग चीज़ें भरी हुई है। मैश्ड राजमा चीज़ के साथ, इसमें चिकन, इसमें आलू और नीचे सिर्फ चीज़ या फिर श्रेडेड मीट के साथ। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। अभी तो काफ़ी कम लोग बैठे हुए हैं बट नॉर्मली बहुत सारे लोग आते हैं इस दुकान पे ये एम्पनादास खाने। मार्ता इधर एम्पनादा खाने बैठ गई है, थोड़ा सा मैं भी लूंगा। What you eating? ये मेरे को रोम पोपे दे रही है। ये है कोस्टा रिकन एगनॉग। Gracias. What does it have? I think rum, egg, vanilla and milk. This is one of the oldest दुकान सोरबेत आइसक्रीम की। मार्ता ने एक ली है और मैं थोड़ी सी ट्राई करूंगा इसके सोरबेत से। How old is this though? What is it made of? Oh, so good kaja. But it has a lot of vanilla. I don't like vanilla in my sweets. कॉफ़ी स्टोर पे हम लोग वापस आए हैं क्योंकि लुइस को कॉफ़ी पीनी थी इस बारी बंदे ने हमें कॉफ़ी बीन्स चॉकलेट में कवर्ड करी हुई भी दी है ट्राई करने के लिए। ऐसे लग रहा है दिल्ली में आ गए हैं किसी मार्केट में। नेशनल थिएटर है सेंटर में, अंदर से बहुत अच्छा है। इसके अंदर कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं बट वो वाले कॉन्सर्ट्स होते हैं जो जैसे थिएटर्स वगैरह में होते हैं, कोई डांस डूंस करने वाले कॉन्सर्ट नहीं होते हैं। ये बताओ मेरे को इसका मतलब क्या है, ये क्यों बनाया हुआ है ये? What's the story of this place? Yeah, there are gunshots there. Gunshots. Yeah. It used to be a fort. So during the Civil War, somebody shot at it because they were angry. There were two parties. The ones that won were National Liberation Party, and those were about abolish the army, did all these nationalized industries, did all these things once they won. But that was the Civil War in 1948. वो जो छोटे छोटे होल्स हैं वो गोलियां चली हुई हैं। को चलते चलते क्या मिला मेरे को, तियंदा हिंदू वहाँ नीचे लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है इंडियन स्टोर। यहाँ इनके पास इंडियन सामान है अंदर। मैं नहीं जा रहा, बाद में जाऊँगा कभी। ये ट्रेन स्टेशन है एक, देखो बहुत पुराना ट्रेन स्टेशन है। हमें पहले पूरे कोस्टा रिका में ट्रेन हुआ करती थी और बहुत सालों पहले एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने ट्रेन्स बंद कर दी और ट्रकिंग ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिया। तो सिर्फ ये एक छोटी सी लाइन बची हुई है ट्रेन की जो सिर्फ सिटी में चलती है। पहले पूरे कोस्टा रिका में चलती थी ट्रेन। ये पुराने ज़माने के एक इंजन का सैंपल पड़ा हुआ है इधर, बस देखने के लिए। और इस साइड देखो कितनी सुंदर सुंदर ग्राफिटीज़ हैं। ये एरिया जो है ये एक हिपस्टर एरिया है आगे चल के, मारियो एस्केलांते। आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट वॉकेबल नेबरहुड है जहाँ
लोग पैदल चल रहे होते हैं कोस्टा रिका में, इवन नेबरहुड्स के अंदर। ये लोग कुछ करेंगे बड़े होके। हम लोग अभी बारियो एस्केलांते के नेबरहुड में है, जो बाहर जाना था वो खुला नहीं है। ये देखो गाड़ी भाई की, और यहाँ जनता बैठी हुई है, कोई म्यूजिक बजाएगा थोड़ी देर में, कोई कुछ करेगा। Luis, why do you hate India? Mostly the Indians, mostly the people, their sense of humor, Yeah. and the food, absolutely horrible. किसी और दिन आपको डिटेल में टूर दूंगा बारियो एस्केलांते का। यहाँ पे हर जगह इंटरेस्टिंग बार्स, रेस्टोरेंट्स हैं। दोस्तों मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग खाना खाने लगे हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक भी करो और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। चीयर्स, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।